اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، بیماری آنے سے پہلے اگر حفاظتی تدابیر بتا دی جائیں، عقائد کوئی بگاڑے ہی کیوں اگر پہلے عقائد کی پختگی سکھا دی جائے، اگر پہلے سے دلائل سے آگاہ کر دیا جائے۔ ایک تو ہے کسی کو مارا جائے، اس کے منہ پر اس کو گالی دی جائے، اس کو ستایا جائے، اس کے راستے میں کانٹا بچھایا جائے، اس کو پتھر سے، تھپڑ سے، ڈنڈے سے، تلوار سے مارا جائے۔ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی کسی مسلمان کے خلاف بات بھی نہ کر۔ اتنا زیادہ پابند مذہب، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی کسی مسلمان کی عیب جو اس میں پایا جاتا ہے، وہ عیب جو اس میں موجود ہے، وہ عیب بھی تجھے گھر کے اندر بیٹھ کر نجی اور ذاتی محفل میں بھی بیان کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اسلام نے اس کو غیبت کا نام دیا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فعل کہ تو گھر کے اندر بیٹھ کر کسی کی عزت کے بارے میں بات کرے، انہیں زنا سے بھی برا کام کیا، یہ بدتر ہے زنا سے۔ یہ جو زیادتی اور ظلم ہے نا میرے بھائی، اس کو اسلام نے اس قدر زیادہ ناپسند کیا، اور اس پر اسلام نے اس قدر زیادہ احکامات بیان کیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں، ابن حجر علیہ رحمہ نے لکھے، اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اور اگلے لفظ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے، فرمایا اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ وہ مظلوم، اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ والا رٹا نہیں کہ میری برادری کا ہے تو میں نے سپورٹ تو کرنی ہے نا۔ ہم تو ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ نوجوان کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کی بیٹی کو بھگا کے لاتا ہے تو اس کے دوست اس کی مدد کرنا فریضہ سمجھتے ہیں، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو رہنے کو جگہ دی جاتی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چوک میں لڑائی ہوئی ہے اور ہمارے بچے کی کسی کے ساتھ پٹائی ہوئی تو ہم تو بندوق کے ڈنڈے کلاڑیاں اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے تحقیق پہ پتہ چلتا ہے کہ ظلم تو ہمارے بچے کا ہے، تو پھر مدد کس کی کرنی چاہیے تھی؟ ہم کس کی کرتے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، حضور کو بڑی محبت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھیں گے پر میں سجدے میں گر کے اپنی امت کی دعائیں مانگوں گا۔ قیامت میں جو بچے گا وہ میرے نبی پاک کی برکت سے بچے گا۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم کر کے نہ آنا، تمہاری باقی کمیوں پہ میں پردے ڈلوا دوں گا، ظلم کر کے نہ آنا۔ امام بہق کی روایت لائے ہیں، محبوب پاک نے فرمایا میرے امتی نے کافر کے ساتھ اگر زیادتی کی، وہ ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، ذمہ کافر تھا، اور میرے امتی نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کافر کے ساتھ مل کر اپنے امتی پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا، میں خود مقدمہ دائر کروں۔ یہاں ظلم کی آندیاں چلتی ہیں، طوفان چلتے ہیں، لوگ دوائیوں میں ظلم بیچتے ہیں، لوگ تعلیم کے نام پر ظلم کرتے ہیں، لوگ خیر کے نام پر ظلم تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ اکبر ایسے ایسے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب بنے گا کیا؟ کیا ہر زینب اسی طرح تڑپ کے چلی جائے گی؟ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ ہمارے یہاں تو نمبر گیم چلتی ہے، سیاستدان شعر لکھ کے لاتے ہیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ آپ کب بولیں گے؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا آپ کے بولنے کا۔ ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ آپ کے نمائندے ہیں،
इनको होना चाहिए था वहां, मेरे नहीं है, अल्लाह जानता है, एक भी नहीं है इनमें से, सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे ये नुमाइंदे होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, हमारे नुमाइंदे नहीं है ये, आपके भी नहीं है, पर थोड़ा सा वक्त और रह गया है, फिर इंशाअल्लाह सारा पाकिस्तानी समझदार हो जाएगा, ये किसी के भी नहीं है। मेरे भाई नंबरिंग हो रही है। मैं रात गुजरात में था तो मैं कह रहा था कि एक साहब कहने लगे मुझसे वहां के पंजाब की हुकूमत को रिजाइन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, तो मैंने कहा रिजाइन वो करते हैं जिनके अंदर कुछ थोड़ा बहुत शर्म का मादा होता है, ये लोग रिजाइन करेंगे, ये कैसे कर सकते हैं? और फिर रिजाइन सिर्फ उनको नहीं करना चाहिए था, मेरी तो दावत यह है कि हर सियासी जमात रिजाइन करे कि हम इस मुल्क में सियासत नहीं करेंगे, मजहबी जमातें तबलीग करना बंद कर दें, किराने उजाम गद्दी नशीनियां छोड़ के बाहर निकलें। ये जो हर चौक और हर चौराहे में लोग नसीहतों का बाजार गर्म करके खड़े हैं, ये छोड़ दें। क्या असर है तुम्हारी तबलीगों का? क्या मिल रहा है कौम को? तुम्हारी गद्दियां क्या तज़किया नफ्स कर रही हैं? और हर उस आदमी पे मुकदमा होना चाहिए जिसके मोबाइल में गंदी फोटो है। हर वो आदमी मुजरम है जो गंद देखता है, गंद आगे तकसीम करता है। ऐसे ही एक दो आदमी का नाम लगा के चुप कर गए हो, सुबह कयामत के दिन उस ज़ैनब के खून के हिसाब में मुझे भी पूछा जाएगा और आपको। हर एक आदमी दूसरे पे बोझ डाल के खामोश हो जाता है। हुकूमत ने गलत किया, हुकूमत बनवाई किसने थी? किसने वोट दिया था? बराबर के शरीक है इनके जुर्मों में जो इनको ठप्पे लगाते हैं, चुप कर जाते हो तनकीद करके। हजरत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, जालिमों का मददगार भी जालिम होता है। तो उनको ठप्पे लगाने वाला जालिम नहीं होता? वो नहीं मददगार जालिमों का? अभी तक लोग कह रहे हैं मौलाना आप सख्त जुमले कहते हैं, आप सख्त जुमले कहते हैं, आप बचे। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं ना, तुम्हें खबर नहीं, तुम इस ज्यादती का शिकार नहीं हो, तुम्हें क्या पता। मेरे एक चचा का बेटा था, इकलौता था, वो रास्ते में जाते हुए किसी की गोली का शिकार हो गया। मैं थाने गया पर्चा कटवाने, तालिब इल्मी का जमाना था, और जब मैं घर से निकला था तो मेरी जेब में 2 रुपए थे। मेरे तो अब्बा जी बड़ी देर पहले इंतकाल कर गए। चचा की ये हालत थी कि वो बेचारे उठने के काबिल ही रहे, एक बेटा था। और मैं जब थाने गया तो मैंने पर्चा काटने वाले से कहा कि कत्ल हो गया है, पर्चा कटवाना है। और डॉक्टर ये कहता है, डॉक्टर ये मसीहा बने फिरते हैं कौम के, वो कहता है लाश को उधर रखो और पहले पर्चा कटवा के लाओ, फिर पोस्टमार्टम करेंगे। उसने भी एक टेलीफोन करना गवारा नहीं किया। ये सारे जालिम हैं इल्ला माशाअल्लाह, ये सब कटहरों में आएंगे, इन सब को हिसाब देना। इनकी गोदों में बैठने वाले मौलवी और पीर सबसे पहले वो लटकाए जाएंगे, सबसे पहला नंबर उनका है। मैंने जाके कहा पर्चा पहले पर्चा कटवाओ फिर पोस्टमार्टम से। मैंने कहा पर्चा, तो पुलिस वाला मुझे कहने लगा एक पेंसिलों का डब्बा लाओ। ये नुमाइंदे हैं हमारे, ये हमारी हिफाजत करने पे हैं, ये तुम्हारे लिए तुमने खुद अपने लिए पुलिस बनाई है। ज़ैनब का चचा कहता है जब मैं थाने गया था पर्चा कटवाने, मुझे पुलिस वाले कहते थे अगर माल्टे ठंडे मिलते हैं तो लेके आ। और ज़ैनब का चचा कहता है कि वो मुझे कहते थे कि जा नेस्ले की 2 बोतलें ला, पानी पीना है। इस मुल्क पे बसने वालों का कोई वारिस नहीं, कोई नहीं इनका वाली वारिस। और कहते हैं कूड़े में पड़ी लिपटी हुई खून से लाश। और मुझे पुलिस वाले कहते हैं फलाने ने लाश ढूंढी है, उसे तो पहले 10,000 दे ले। मैं जालिम हूं, आप जालिम हैं, इन्होंने इन जालिमों को अपना सिपा सालार बनाया है। तैयारी कर लो अल्लाह के हुजूर। मैंने पूछा रब करीम से, मौला तू बताना रिजल्ट कब निकलेगा? तो रब करीम ने फरमाया दुनिया तो गाफिल हो सकती है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। कर जाके सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 42 पढ़ो। रब फरमाते हैं अल्लाह गाफिल नहीं है उन लोगों से जो दुनिया में, अल्लाह जालिमों के कामों से गाफिल। तो फिर मौला रिजल्ट क्या है? फरमाया इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौम, अल्लाह ने एक दिन के लिए ये फैसले रखे हुए। रब रोज अदालत नहीं लगाएगा, अल्लाह ने एक दिन रखा हुआ। तशखसु फीहिल अबसार,
फरमाया मैं जालिमों को इस तरह लटकाऊंगा कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं जालिम को, रब करीम फरमाता है, मुझे कोई गाफिल ना समझे, वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है। हजरत वहाब इब्न मुनब्बिर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, आप फरमाते बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह बड़ा जालिम था। उसने महल तामीर करना शुरू कर लिया। महल बन रहा है, महल के बीच एक झोंपड़ी आ गई, कुटिया एक बूढ़ी औरत की। तो बादशाह ने उस बीबी से कहा कि ये कुटिया, ये झोंपड़ी दे दो, मेरे महल का नक्शा खराब होता है। तो बूढ़ी कहने लगी मैं बेवा भी हूं, बे औलाद भी हूं। जब मैं ब्याह के यहां आई थी तो मेरे अब्बा ने कहा था बेटी तेरा जनाजा निकलना चाहिए, तो चलो मैं पका हुआ फल हूं, थोड़ा वक्त रह गया है, मर जाऊंगी तो तुम्हारा ही है, मेरा कौन सा कुबाली वारस है। चलो जिंदगी की जो सांसें रह गई हैं मुझे यहां गुजार लेने दो। तवज्जो है ना मेरे अजीजों की, मुझे यहां गुजार लेने दो। बूढ़ी मिन्नत करने लगी। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, तू पैसे ले और हमें खाली करके दे झोंपड़ी। बादशाह ने इसरार किया तो बूढ़ी कहने लगी नहीं मैं नहीं दूंगी। वो अपने घर के अंदर बैठ गई। यूं समझ लीजिए कि बिल्डोजर तैयार करके छुपा दिया गया। 2 4 5 सिपाही खड़े कर दिए कि बूढ़ी ने को सारी जिंदगी घर में तो नहीं ना बैठना, निकलना तो है ना बाहर। जब निकले ना तो फौरन इसका मकान गिरा दो, 2 4 5 10 मिस्त्री इकट्ठे लगाओ, दीवार बना दो, इस तरह कब्जे होते। बूढ़ी कुछ देर तो चिमटी रही घर के साथ, फिर उसको निकलना भी था। जब उसने समझा कि अमन हो गया है, फिर वो बूढ़ी बाहर निकली। और जब वो गई बाहर, चंद घंटों के बाद वापस आई तो झोंपड़ी घिरी हुई थी। घर की छत के तिनके हवाओं के साथ बिखरे हुए थे। नया मकान बन गया। वहाब इब्न मुनब्बिर अलैहि रहमा फरमाते उस बीबी ने जो दुआ मांगी तो अर्श फर्श हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। उस बीबी ने लफ्ज पता क्या अदा किए? कहने लगी ए अल्लाह, मैं तो मौजूद नहीं थी, तू बता तू कहां था। अल्लाह मैं तो नहीं थी। ज़ैनब की अम्मा भी पूछती है अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू तो मौजूद था ना। तो अर्श का मालिक कहता मैं हिला दूंगा। जरा इन उलमा को, मशाइख को, इन अरबाब इक्तदार को देख लेने दो, मेरी ढील है। कहती अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू कहां था, तू बता। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, दौड़। अल्लाह हुक्म क्या फरमाया, पलट दे इस बस्ती को, तबाह कर दे उन लोगों को जो जुल्म पर चुप रहते, उन्हें तबाह कर दे। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। उसका मुनाफिक नहीं कोई। मुनाफिक बन के जीना बंद कर दो, अब मोमिन बन के जीना सीखो। इन जालिमों के खिलाफ बोलो। मेरे अजीज कहते तबाह कर दो बस्ती को। बस्ती उलट दी, घर तबाह हो गए। याद रखो अर्श का मालिक कहता है तो मैं देख रहा हूं, वरना कोई मौजूद ना था, मैं तो था ना, मैं तो सारा कुछ देख रहा हूं। मैं इस वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, लोग अल्लाह को गाफिल ना समझे। और फिर मीडिया चीखता है, मीडिया चीखता है, कहता है जी बड़ा जुल्म हुआ। इस काम में सबसे ज्यादा किरदार इस बुराई को फैलाने में मीडिया का है। मीडिया तो बच्चों को गुनाह के तरीके बतलाता है। और हुकूमतें, मुमताज कादरी का जनाजा ना दिखाना हो तो मीडिया सारा बंद हो जाता है। फैजाबाद धरने का जुल्म ना दिखाना हो तो मीडिया सारा बंद हो जाता है। तो गंद अगर दिखाना बंद रोकना चाहे तो गंद रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? ये पाबंदी, ये टेक्निकली जमाना है। अगर ये बंद करना चाहे, ठीक है, अगर ये बंद करना चाहे तो हर चीज अपनी जगह पे बंद हो सकती है कि नहीं? बोले। लेकिन हम तो रोएंगे ना, फेसबुक पे तस्वीर लगाएंगे ज़ैनब के साथ जुल्म हुआ, तो तेरी तो हमाम वाली दुकान पे गंदी फोटो लगी हुई है, तेरे तो मोबाइल में सारा गंद है। इस गंद की तरवीज और इशात में तो मैं और आप शामिल होते जा रहे हैं। गंद तो प्रमोट हो रहा है, इसी से तो लोगों के जज्बात उभरते हैं। अब्बा जी कहते हैं मुझे एतबार है, मुझे एतबार है बेटी पे। ये क्या तमाशा हुआ एतबार का? ये क्या बात हुई? एतबार किसको कहते हैं? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह
आपसे किसी ने पूछा, मैं थोड़े दिन पहले, मुझे गुजरात यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों ने दावत दी, कुछ असातिज़ा ने कहा कि यहाँ सीरत सेमिनार है, आप आए। सियालकोट में जो कैंपस है, मैं वहां जब पहुंचा तो मैंने कहा यार ये सिर्फ लड़के होने चाहिए। कहने लगे इतने इतने मौलवी तकरीर करते हैं लड़कियों में, तो आप, तो मैंने कहा यार मुझे दिखिया नूर समझ लो, वो पुराने ख्यालात का हूं, और वैसे भी मेरे लिए मौलवी हुज्जत नहीं, मेरे लिए रसूलुल्लाह का दीन हुज्जत है, तो आप पर्दा कराएं। खैर उन्होंने मेहरबानी की, कोई पार्टीशन हो गई। जब मैं पहुंचा तो शायद 1.5 मिनट लगा हो मुझे गेट से हाल में जाने तक, लेकिन वहां जो बच्चे और बच्चियों का मैंने हाल देखा तो मैं दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह तू इस कौम पे फजल फरमा, इस कौम पे। अब्बा जी कहते मुझे इतमार है, नाबीना से अभी अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रदी अल्लाह ताला, वो आए हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा पर्दा कर लो, तेरे घर में बसने वाली बीबी सैयद आयशा से भी, तेरी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका से भी ज्यादा हुर्मत वाली है। नबी पाक ने फरमाया आयशा पर्दा करो, हुजूर वो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तेरा एतबार यहां से भी ज्यादा बढ़ गया है। हजरत जुनैद बगदादी से कहा हुजूर हमें कुरान शरीफ पढ़ा दे। आपने फरमाया दरमियान में औरतें पर्दा डाले फिर पढ़ाऊंगा। कहा हुजूर कुरान पाक ही पढ़ाना है। तो हजरत जुनैद फरमाने लगे पढ़ाने वाले हसन बसरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो और दरमियान में कुरान पढ़ा हो, फिर भी मैं उन्हें बगैर पर्दे के पढ़ने की इजाजत नहीं देता। यहां तो हाल ही कोई नहीं। इस गंद को रोज प्रमोट करते हो, नौजवानों के जज्बात बिखरते हैं और बिखरते हैं, और फिर उसके बाद कहते हो कि आग ना लगे। ये कैसे हो सकता है? तुमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दिश अय्याम को इल्जाम न दो। तुमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्जाम न दो। ओ भाई याद रखो, जब तक ये गंद रहेगा फहाशी और उरियानी रहेगी। इंडिया के अंदर ज्यादती के वाकयात ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। क्यों? इसलिए कि गंद ज्यादा है, फहाशी और उरियानी। इस्लाम ने तो नजर तक पर पाबंदी लगा दी, कहा अपनी नजर भी मोमिन झुका के रखे। जो चीजें सबब बन सकती हैं उन पर भी पाबंदी लगा के रखी। हम तवज्जो ही नहीं करते, ख्याल ही नहीं है, इसको प्रमोट किया जाता है। और सबसे दूसरी बड़ी वजह यह है कि मुजरिम को सजा नहीं मिलती। मुजरिम को सजा, बोलिए, वो छूट गया ना सरेआम एक बड़े आदमी का बेटा कत्ल करने वाला, छूट गया ना। वो जिसने सरेआम एक सिपाही कांस्टेबल को कुचल दिया था वो बच गया ना, आ गया ना बाहर। रेमंड डेविस कई गोलियां मार के बच गया ना। जब मुजरिम को सजा नहीं मिलती तो फिर गुनाह बंद। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून दिया। कानून, एक औरत ने चोरी की, उसके हजरत सैयदना उसामा बिन ज़ैद हुजूर के महबूब सहाबी सिफारशी बन के आए, हुजूर थोड़ी लचक दे दे। नबी पाक ने फरमाया सुनो, मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं हाथ काट देता। मुजरिम के लिए सजा जरूरी है, मुजरिमों को सजा मिलेगी तो हालात बेहतर होंगे। कहते हैं सरेआम फांसी लगाओ, कहते हैं कानून में गुंजाइश नहीं। तुम्हारे लिए कानून रोज बदल जाता है। जब मुतालबा किया गया ना कि सरेआम फांसी, जाग रहे हैं आप लोग, कैसे हो गए जी? चले मैं दुआ करता हूं, अल्लाह करे मेरी कौम जाग जाए, आमीन तो कह दे। अल्लाह करे आप लोग जाग जाएं और जागते रहे। आला हज़रत ने फरमाया था, मशवरा दिया था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना क्योंकि चोरों की रखवाली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। कहा गया सरेआम फांसी दो, तो कहने लगे आइन में गुंजाइश नहीं, चौक में। और तुम्हारी जरूरत पड़े तो आइन में तरमीम हो जाती है। तो आज ज़ैनब को जरूरत पड़ी है तो क्यों तरमीम नहीं हो सकती? आज एक गरीब मजलूम माँ को जरूरत पड़ी है तो तरमीम क्यों नहीं हो सकती? इन्हें चौक में फांसी दो, इन्हें लटकाओ, इन्हें काट कर कुत्तों के आगे डालो ताकि हर एक की बेटी महफूज रह सके। और वो ज़ैनब किसी और की बेटी नहीं हो, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। कभी 6 साल की बेटी सीने पे लिटा ना, तो फिर उस बाप का दर्द महसूस कर, मुझे अंदाजा हो कि बेटी तो बेटी होती है। हातम ताई की बेटी नंगे सर दरबार रिसालत पे आई तो मेरे नबी पाक ने चादर दी। सलमान फारसी कहने लगे सोनिया काफिर की बेटी है, तेरी पाक चादर है, मैं अपनी ना दे दूं? तो हुजूर ने फरमाया सलमान चुप कर जा, बेटियां सांझी होती, बेटियां सांझी होती हैं, चुप कर।
काफिर की बेटी सही, बेटी तो है ना, तो बेटियां तो सांझी होती हैं। यहाँ इतना जुल्म और इतना हशर हो गया और कहते हैं पता नहीं चला। देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं। याद रखो, जुल्म कभी मिटा नहीं करता, जुल्म कभी। इसलिए ज़ैनब भाई, ज़ैनब तो मेरी बेटी है, ज़ैनब तो तेरी बेटी है, ज़ैनब तो उम्मत की बेटी है, ज़ैनब तो पाकिस्तान की बेटी है, ज़ैनब तो हर उस शख्स की बेटी है जो किसी भी बच्ची का बाप है, जो किसी भी बच्चे का बाप है। वो मिल्लत की बेटी है, इसलिए वो दुख किसी एक का नहीं, वो सब का बराबर का है। बस याद रखो, इस मुआशरे में पहली बात ये, इस गंद पे, बेहयाई पे कंट्रोल। दूसरी बात ये, तदारुक अर्ज कर रहा हूं, मुजरिम को सजा मिले। अगर पुराने मुजरिमों को सजा मिलती तो कभी भी दोबारा जुर्म की किसी को हिम्मत है। हजरत उमर के जमाने में जुर्म क्यों बंद हुए थे? तो इसलिए कि वो सरेआम कोड़े मारते थे, उनका दुर्रा लटकता था, वो किसी को गुंजाइश नहीं देते, किसी को गुंजाइश। गवर्नर का बेटा भी ज्यादती करता तो चौक में खड़े होकर दुर्रे मारते। फरमाते लोगों की माओ ने उन्हें आजाद पैदा किया, तुमने कैसे गुलाम बन लिया? यहाँ जब कानून बदलता है और फिर शिकवा है, हमें गरीब आदमी हो तो पर्चा दर्ज कराना हो तो उसको तो चौधरी साहब भी वक्त नहीं देते, उसको तो चौधरी साहब भी कहते हैं गड्डी कराई या पैसे है नहीं थाने जाने दे, उथे पैसे लगते हैं। जालिमों, डरो अल्लाह ताला से, डरो। और गरीब आदमी है, चला जाए थाने तो उसको पुलिस वाला पूछता है, वो कहते हैं किस तरह हुआ था, किस तरह करके हुआ, तफसील बता। और फिर वो दो कहता है तू जा, अभी मैं कोशिश करता हूं, मैं पहले उनको फोन करता हूं मुजरिमों को, फिर उसके बाद तेरा। और तगड़े आदमी पे दरखास्त आ जाए कभी, उसको फोन करके पूछते हैं चौधरी साहब की करना है पर्चे दा, फिर वो खुद फोन करते हो। ये अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए और है, ये किस तरह हो सकता है? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की फराहमी छोटे बड़े के लिए एक रखी। और याद रखो, हिसाब तो देना है, हिसाब बोल के बताइए, हिसाब जो ज्यादती करे और देना पड़ेगा। यहां नहीं दोगे तो वहां दोगे, हिसाब तो बहरहाल उस मुजरिम ने तो देना है। लेकिन अरबाब इख्तदार ने भी, हजरत उमर फरमाया करते थे मेरे दौर में कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब मैंने देना है, क्योंकि मेरी हुकूमत थी, कुत्ते को पानी मिलना चाहिए था, उसके दरवाजे तक पानी पहुंचना चाहिए था, हिसाब तो देना है। हर उस शख्स ने जो सोशल होने का दावा करता है, जो मुआशरे में किसी भी तरह का कोई किरदार अदा कर रहा है, उसने बहरहाल हिसाब, ये मुश्तरका मामला है, इसमें अरबाब इख्तदार का तो अशर होगा, वो तो दुनिया देखेगी। लेकिन बाकी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, बाकी भी ख्याल करें। सुनो और याद रखना इस बात को, गौर करें। क्या मेरी तरफ देखे मेरे भाई, एक मकरान शाह बादशाह गुजरा है ईरान का, कुछ नरम दिल था, वो ना सैर करने निकला, दरमियान में पुल आता था, एक दरिया था, उसका पुल था, पुल के उस पार जंगल था, सब्जा था, सैरगाहें बनी हुई थी। बादशाह वहां 2-4 दिन रहने का इरादा किया। जब बादशाह वहां पहुंचता है ना मकरान शाह, तो उसने देखा कि वहां 2-3 दिन कयाम करना है, झील है, सैरगाह है, वहां उसने रुकने का प्रोग्राम बना लिया। बादशाह तो अलहदा उसके लिए रिहाइश थी, सिपाही अलहदा रहते थे। यहां तो लोग कहते हैं ना, वो पुलिस को डांटते हैं, पुलिस को पूछते हैं, ओ भाई पुलिस तो तुम्हारे मतहत होती है, पुलिस तो समझ गई है कि तुम किस तरह उनसे काम लेते हो, उनको तो तुम अपने तहत रखते हो। पुलिस वाले अलहदा रहते थे, उसके साथ जो सिपाही गए हुए थे, गनमैन गए हुए थे। मकरान शाह सैर सपाटे में रहता था। एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक गाय थी, वो जंगल के अंदर बूढ़ी रहती थी, गाय उसकी वहां चरती रहती थी। शाम को वो गाय घर लौटती, बूढ़ी दूध पी के सो जाती। सिपाही उस बूढ़ी के पास आए, कहने लगे तेरी गाय बड़ी सेहतमंद है, हमारे हाथ बेच दे। बूढ़ी ने कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसका दूध पी के मैं जिंदा हूं, बेचूं कि नहीं। वही वाला काम जो हमारे मुल्क में होता है कि कीमत के साथ जमीन देनी है कि मुफ्त देनी है। जब बड़े आदमी को पसंद आ जाती है तो कहते हैं मोहलत देनी है कि मुफ्त देनी है, तो देनी पड़ती है, गरीब है क्या करे, मजबूर है, मजलूम है। कहा बूढ़ी औरत से सिपाहियों ने बेच दे, कहा नहीं, कहने लगे नहीं बेचेगी तो हम ले लेंगे। उस औरत की गाय जबरदस्ती सिपाही जिबा करके खा गए। बूढ़ी ने बादशाह तक पहुंचना चाहा, लेकिन उसको पहुंचने न दिया गया, मना कर दिया गया। उसकी रसाई ना हो सकी, गरीब औरत थी।
जिस दिन मकरान शाह वापस आ रहे थे ना सैर करके, पुल से गुजर रहे थे, तो किसी ने बूढ़ी से कहा कि बादशाह गुजरेगा। वो छुप के पुल पे बैठ गई और मकरान शाह जब पुल से गुजरने लगे तो बूढ़ी आगे आई और उसके घोड़े की लगाम पकड़ी। ऐसा जुमला कहा कि मकरान शाह चकरा के जमीन पे गिरा और बूढ़ी कहने लगी, मकरान शाह, तेरे सिपाही मेरी गाय ज़िबा करके खा गए हैं, तू बता उसका हिसाब इस पुल पे खड़े होकर देना कि पुल सिरात पे देना है? बता, यहां खड़े होकर देगा? बोल। अरबाब इक़्तिदार, हुकूमत के वानों में बैठने वालों, बताओ ज़ैनब का हिसाब कसूर के चौक में खड़े होकर दोगे कि मैदान महशर के चौक में खड़े होकर दोगे? बताओ कहां हिसाब देना है, यहां देना है कि वहां देना है? हिसाब तो बहरहाल तुम्हें देना है। इस कौम को उसका हिसाब तो, ज़ैनब का हिसाब तो देना है, देना पड़ेगा, दिया जाएगा, पूछा जाएगा। बताओ यहां देना है कि वहां देना है? देना तो पड़ेगा। यहां दोगे तो हो सकता है कयामत में बच जाओ, और अगर यहां नहीं दोगे तो वहां लटका दिए जाओगे, रुस्वा किए जाओगे, पूछा जाएगा। मकरान शाह चकरा के गिरा जमीन पे और गिर के कहने लगा, बीबी मैं वहां हिसाब नहीं दे सकता, दो देना यही ले ले, जो लेना यही ले ले, आ जाओ, वक्त है, गुंजाइश है, मोहलत के दिनों में तौबा कर लो, पलट आओ, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। इस माशरे को सफाई की जरूरत पड़ गई है। इस माशरे में हर आदमी अपना किरदार अदा करे, जालिम के खिलाफ उठे, बेहयाई, फहाशी, उरियानी, बदनिगाही, इसके खिलाफ उठे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे हुकूमत में बाहर निकले। एक बीबी बेपर्दा, बापर्दा औरत बुरके में गली में घूम रही थी, बुरका डाल के। हजरत अमीर मुआविया दौड़ के मस्जिद चले गए, रोने लगे, कहने लगे, सहाबा के जमाने में ये औरतें गली में आ गई हैं, हमारे दौर में ही आ गई हैं, कहीं अल्लाह का कहर नाजिल ना हो जाए। हालांकि वो बापर्दा थी बीबी। यहाँ तो बड़ी डटाई के साथ फ्रंट सीट पे बेपर्दा औरत को बिठाया जाता है और दलीलें दी जाती हैं कि हम पढ़ लिख गए, FSC और BSc हमारी तालीम है, हमारे पास अभी ताजी तो कार आई है, तो बताए ना कि जो कार पे बैठी है वो कार की मालकन है। यहाँ तो हर चीज खोल के बयान करना लोगों ने अपने लिए जरूरी समझ लिया है, अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया है। खुदारा फाशी के खिलाफ, बेहयाई के खिलाफ, उरियानी के खिलाफ उठो और इस पुल को बांधो। जब तक फाशी रहेगी, उरियानी रहेगी। पाकिस्तान में 10 के करीब बच्चों के साथ रोज ज्यादती होती है। ये आपके कौमी अखबारात की आज सुबह की रिपोर्ट है। ये तो वो चीजें हैं जो खोल के बाहर आ गई, और इसके अलावा जो बेहयाई के अड्डे खुले हुए, न जाने उनकी तादाद कितनी, किस कदर ज्यादा जुल्म हो रहा है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जिना करता है तो ईमान उसके सीने से निकल जाता है उसके सीने से। आंखों पर पर्दा होना चाहिए, कानों पर पर्दा होना। और अगर ज़ैनब के कत्ल के बाद भी किसी के मोबाइल में गंदी तस्वीर है और उसके कत्ल के बाद भी बेहयाई के गाने उसके मोबाइल में हैं, तो फिर वो रस्म के आंसू ना बहाए, फिर वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आगे बढ़ के मरसिया खाना बने, वो फिर शायर और अदीब बनने की कोशिश ना करे, और फिर अपने हिस्से का जुमला लगाकर अपने आप को फेसबुक पे एक्टिव रखने का तमाशा ना करे। क्या मतलब हुआ इन चीजों के खिलाफ नहीं उठना, बेहयाई और फाशी के खिलाफ नहीं उठना? मेरे अजीजों, आखिरी बात सुनना और इसको हमेशा याद रखना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी एक मुसलमान के कत्ल में अगर अहले जमीन, अहले आसमान सारे भी शरीक हो जाएं, सारे, तो फरमाया हो सकता है अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे। इसलिए कि जो कत्ल है ना, कत्ल एक है ज्यादती और एक है फिर उसके बाद कत्ल। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल, इतना बड़ा जुल्म। और यहां तो अब कत्ल की खबर आ जाए ना अखबार पे तो इतनी दिलचस्पी वाली रहती नहीं। इतने लोग कत्ल हो गए, कोई अर्ज नहीं। ये तो हमारे यहाँ तो किसी सियासतदान की शादी की खबर आएगी तो वो दिलचस्पी वाली होगी, उस पर तबसरे होंगे, कमेंट्स होंगे, एक बंदा मर गया, ठीक है, गरीब आदमी था, कत्ल हो गया, जान छूट, माज़अल्लाह, उस पर कौन तवज्जो करता? यहाँ तो इनके मेले छेले तमाशों पर लोग तबसरे करते हैं। ये जो कोई नई एक्टिंग करके दिखाते हैं उस पर हमारी तवज्जो जाती है। इतनी औरतों ने खुदकुशी कर ली इसलिए कि शाम को खाना नहीं था, बच्चों समेत दरिया में कूद गई। ये होता रहता है, इसकी खैर है।
माज़ अल्लाह, ये तो सारे जमाने में, ये देखो कि किसी सियासी लीडर ने कोई नई एक्टिंग की है तो उस पर तबसरा करते हैं, उस पर थोड़ी देर बैठते हैं। ओ खुदा के बंदो, अपनी तरजीहात बदलो। मैं कहा करता हूं, इनकी गाड़ियों के पीछे भागना छोड़ दोगे तो ये सही हो जाएंगे, इनकी जायज नाजायज चीजों पर नारे लगाने बंद कर दोगे तो ये सही हो जाएंगे। खुदारा, ज़ैनब तो चली गई पर हमें एक पैगाम छोड़ के गई है कि फाशी के खिलाफ उठ खड़े हो, अब जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखो, अब अपने अंदर ये ताकत पैदा करो, अब ताकत पैदा करो। हमें सारा पता होता है, लेकिन इसके बावजूद हम जालिमों के साथ खड़े होकर उनकी तारीफें करते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, सपोर्टर वोटर बनते हैं। और अब इस काम से बाज आ जाओ खुदारा, अब भी समझ जाओ। ऐ अल्लाह, जुमे के दिन इस इज्तिमा में तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, खुदावंदा सारी बेटियों को हिफाजत का पर्दा अता फरमा। अल्लाह सबके लिए हिफाजत के पर्दे नसीब फरमा, और मेरे मौला जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा। अल्लाह इन जालिमों को निशाने इबरत बना, खुदावंदा इन जालिमों को सफाई हस्ती से खत्म फरमा। ऐ अल्लाह, रहमत की बरखा बरसा। इस दौर में मैं और आप हैं, ये पढ़ने पढ़ाने का दौर नहीं, ये सुनने सुनाने का दौर है। सुनना सुनाना और होता है, पढ़ना पढ़ाना। हम सीखने सिखाने के कायल नहीं, हमारी मजलिसें, हमारी महफिलें ये सुनने सुनाने से ताल्लुक़ रखती हैं। सीखने सिखाने का हमारा मिजाज, अगर सीखा जाए ना। मेरे पास छोटा सा बच्चा था, वो 4 साल का, और लिबास भी उसका बता रहा था कि बेचारा ताल्लुक गरीब घर से है, लेकिन उसके बाप ने झगड़े में अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी थी। तो उस बच्चे का चेहरा देख देख के मैं परेशान था कि अब ये माँ बाप के होते हुए भी यतीमों जैसी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं भी उस वक्त अपने आप को मुजरिम समझ रहा था, इसलिए कि हमारे जुम्मों के खुतबे और हमारे शुदा हैं। हमें पता है मुहर्रम में ये बयान करना है, और सफ़र में ये बयान करना है, और रबीउल अव्वल शरीफ में ये बयान करना है, और रबीउल सानी में हमने बिल्कुल तयशुदा उन्वान है। मेरा ख्याल है अगर बार बार ये मसला बयान किया जाए कि 3 तलाक़ें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, अगर दे दी तो हो जाएंगी। बहुत सारे नौजवानों को अगर मसले का पता हो तो बहुत सारे घर उजड़ने से बचें। लेकिन चूंकि सीखने सिखाने का माहौल ही नहीं है, कोई नुक्ता होना चाहिए, कोई अनोखा सा शेर होना चाहिए, वो जनाब मौलाना बात करें और यूं मजमा तड़प उठे, और जनाब सब लोग झूम झूम के नारे लगाएं, और जनाब दोनों बाजू खड़े हो जाएं, और फौरी तौर पर इनकलाब बर्पा हो जाए। खुदा के बंदो, ये कब तक आखिर? जो कुतुब अहादीस में हजारों अहादीस रह गई हैं जो हमने नहीं सुनी, क्योंकि हमने कभी उन्वान उस तरफ जाने नहीं दिया, वो हमने कब सुनना? याद रखिएगा, इल्म, हिकमत, दानाई, तदब्बुर, यही वो विरसा है जो रसूल पाक ने अपनी उम्मत को अता फरमाया। हुजूर सैयद आलम सिखाते, हुजूर बताते, नबी पाक के पास रहने वाले बातों को समझते, हुजूर तालीम इरशाद फरमाते। जरा जरा सा मौका होता तो सरकार तरबियत करते। आज कितनी जल्दी लोगों के अकायद उलझ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम अकायद उलझने से पहले उनकी मजबूती का बंदोबस्त नहीं करते। हमें जब अंदाजा हो जाता है ना कहीं आग सुलगने लग गई है, देखे ना कुछ जगहों पे बीमारी आने से पहले लोग हिफाजती तदाबीर बता देते हैं कि बच के रहना, इस तरह की बीमारी भी पैदा हो जाती है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है कि मोबाइलों की तरफ है? सही बताना है आपने। अल्लाह खुद, मैंने एक दोस्त को चिल्ला बताया था थोड़े दिन पहले, आपको भी बताता हूँ। कहने लगे कोई वजीफा बताएं, कोई चिल्ला बताएं। मैंने कहा पहला ये है कि 20 मिनट मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। तो वो तो नहीं कर सका, अल्लाह करे आप कर लें, उससे नहीं हुआ था। वो 4-5 मिनट में ही उसका चिल्ला टूट गया बेचारे का। इतना ना सर पे सवार करें, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। इस बात को आपने समझना है, गौर करना है। बीमारी आने से पहले अगर हिफाजती तदाबीर बता दी जाएं, अकायद कोई बिगाड़े ही क्यों अगर पहले अकायद की पुख्तगी सिखा दी जाए, अगर पहले से दलाइल से आगाह कर दिया जाए
وہ سوال دیکھیے نا، ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں تو جب استاد عبارت پڑھاتا ہے وہ اس بات پر سوال بھی خود ہی قائم کرتا ہے اور پھر جواب بھی. اب یہاں جو درسیات پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے، سوال بھی قائم کرتے ہیں اس پر. یہ اعتراض ہوتا ہے، استاد خود اعتراض کرتا ہے، پھر خود ہی اس کا کہ کل کو جو اس پر کسی نے اعتراض کر کے اس طالب علم کو پریشان کرنا ہے تو ہم خود ہی نہ بتا دیں. ہمارے پرانے بزرگ تفسیریں لکھتے تھے نا، آپ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھیں تو وہ تفسیر پر اعتراض بھی خود ہی کرتے ہیں اور پھر جواب بھی. اس کو کہتے ہیں حفظ ما تقدم، پہلے سے بندوبست ہو، پہلے سے، تاکہ کوئی ایک عقائد کو علم پہلے سے دے دیا جائے، تربیت پہلے سے کر دی جائے، شعور پہلے سے دے دیا جائے، ان کو پہلے سے پختہ کر دی. ہم سکھاتے نہیں، ہمارا مزاج نہیں، ہماری. اور جو قوم واعظ و نصیحت سننے کے لیے آتی ہے وہ بھی سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں رکھتی، کانوں کے ذائقے کا مزاج رکھتی. اس لیے کوئی بھی خطیب، کوئی بھی واعظ کچھ عرصے کے لیے پاپولر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں نیا ذائقہ چاہیے، پھر کوئی اور سٹائل چاہیے، پھر کوئی اور انوکھا انداز چاہیے. اب یہ حدیث پاک بخاری مسلم میں موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا. اتفاق کی بات یہ کہ سورج گرہن بھی اسی دن ہو گیا. جوڑنے والوں نے بات جوڑ دی، کہا سرکار کے صاحبزادے وصال فرما گئے لہذا سورج کو گرہن ہو گیا. عقائد کو بچانا اور محفوظ رکھنا، اور ذرا ذرا سی، آج کل تو بڑے بڑے لوگ بے احتیاط ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے دو چار جملوں کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جن کے عقیدے بگڑ سکتے ہیں. لوگوں نے بات جوڑ دی، کہا وہ حضور کے صاحبزادے چونکہ وصال فرما گئے اس لیے سورج کو گرہن ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، بلکہ اسی وقت فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو. جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو محبوب پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا. لوگوں کی تعلیم کا خیال رکھنا، ان کے نظریات کو بگڑنے سے بچانا، ان کی سوچوں کو فتنے کا شکار ہونے سے بچانا. آج کیا کریں، جو بتانے والے ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہو پرانی باتیں کر رہا، اور جو بگاڑنے والے ہیں وہ کسی نے کہا تھا بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے. بہکانے والوں کو تو یار بنا لیتے ہو اور سمجھانے والوں کو گناہگار سمجھتے ہو. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو مسجد میں بلایا اور خطبہ دیا. کریم فرمانے لگے یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے. حضور فرمانے لگے کسی کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کو نظریاتی طور پر بچا کے رکھنا، ان کو پختہ نظریات دینا، تعلیم دینا، سمجھانا، یہ ضروری ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے علم کے فروغ کا کام چھوڑ دیا ہے. ہمارا مزاج کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہم حاصل کرنا، حصول کرنا، ہمارے پاس کی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے فلاں مولانا صاحب کو ہم نے اپنی مسجد میں رکھا ہے، دور دور سے وہاں لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور ان کی بات کو سن کے کچھ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نمازی بھی ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے مولانا ہم لائے تھے لیکن ہمارے بچوں پر تو کوئی اثر نہیں ہوا. دور دور سے ان کا بات سن کے لوگ ٹھیک ہو گئے اور ہماری مسجد کے خطیب ہیں لیکن ہمارے ہاں کوئی ان کا اثر ہے. تو میں نے کہا اس کی وجہ ہے نا، اگر آپ سمجھ میں نہیں آئی آپ کو تو. وہ کہنے لگے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دور سے آتے ہیں وہ قبلہ حضرت صاحب کی بات سننے آتے ہیں، اور آپ نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ ہم نے 30,000 روپے مولوی رکھا ہوا ہے. آپ کے بچوں کی سوچ یہ ہے کہ 30,000 تنخواہ لیتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کام کرنا. وہ جو دور سے چل کے شمس تبریز کے پاس جاتا ہے وہ جلال الدین رومی بن جایا کرتا ہے. وہ جو وقت نکال کے ڈیوٹی نکال کے آگے پہنچ کر
حضرت جناب ابو سعید مخزومی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ غوث پاک جیلانی بنا کرتا ہے، لیکن ہم نے مزاج نہیں پیدا کیا، ذوق نہیں دیا. پہلے علم کا وہ مزاج نہیں، پھر عالم کے بارے میں ہمارا وہ مزاج نہیں، ہماری وہ طبیعت نہیں. اب میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ شام کے بعد پھر تھوڑی طبیعت علیل ہو گئی. وعدہ تھا میں حاضر ہو گیا، ورنہ میرا شوق بڑھ رہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں. میں نے ایک محفل میں گیا ہوا تھا، تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیے گا، بات پوری سنانی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے. تو بعض اوقات نہ کسی بندے سے ہم نے خصوصی تعاون لیا ہوا ہوتا ہے محفل میں. پہلے کہہ چکا ہوں ناراض نہ ہونا.